So let us start my journey of maybe I'll say photography only because I started photography in 2011. So just 9 years into photography, and uh, I was very. Let's start with the presentation. है तो फिर कहानी कहीं और चली जाएगी. So yeah. So you can see this like journey where I'm leading some people to somewhere. So let me ask you. I always ask people. Yeah. Can you name the rivers of Mumbai? Okay. इस पे किसके माइक ओपन है? ईसा, can you tell 1, 2, 3 rivers? Yes, why not? Mithi is there, Dahisar is there, Mahul is there. और Poisar River. Poshiwara. Poshiwara, Okay. correct. Poisar River is there. और But we should not answer Isa. Yeah, that's what. But he said my name. And Aslam said, are you sharing something because we cannot see something on screen? No, right? Sorry. Are you sharing something on screen? Of course, yeah. Sorry, मैं screen scale में ही है. Sorry. Okay. It's okay. मैं थोड़ा सा इसमें कमजोर हूँ. मेरे को बताओ अभी किधर से शेयर करना है. So can you see present now? Present now, yes. Share You can do your the entire screen. Correct. Okay, share. मुझे लगा मैंने कर दिया था. I'm very sorry. I started my PPT. And दिख रहा है क्या? No, sir. दिखेगा सबर. ओके मेरे को तो आ रहा है शेयर का ऑप्शन बट वो क्लिक नहीं हो रहा है. लेट अस वेट. कैंसिल करके वापस करोगे? हाँ, because we cannot see. Wait. Present now. Present your entire screen, right? Correct. There is a small tab there. You have to press it. Share screen का. हाँ वो ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है बट आई डोंट नो व्हाई. ऐसा है क्या कुछ? मेरे को कुछ दिया है. Chroma wants to share the content. Can you tap on the screen? Can you tap on the screen and then share? Screen पे tap करो जो. Yeah. I'm sorry. And then share. Done? आ रहा है? Yes. Perfect. सही है. तो yes. अभी आया ये? Yes. Can you do full screen? Yes. Correct. Now we can see. So मेरे पास एक लकड़ी है. वो लकड़ी लेके घूमते रहता हूँ मैं. I ask people, can you name the rivers of Mumbai, right? So Nikhat ma'am and Minaz, can you tell more names of rivers? No, I know only these. What? 4 rivers and then Ullas River is there on that other side. Okay, yeah. So there is a student named Piyush is writing Mahi, Mahul, Manori, Malad, Gorai, and somebody Krish is writing Velankali River. मेरा PPT लीक हो गया शायद. Okay, so only answer I hear is most of like good. You यहाँ पे काफी सारे numbers मिले rivers के. There are more than that. So हम लोग गिनते हैं थोड़े से और बहुत सारे हैं. लेकिन मेरे को खुद से वो रिवर के नाम देना पड़ेंगे. तो कुछ रिवर के मैंने भी नाम दे दिए क्योंकि रिवर के नाम ही नहीं है. तो मलाड में 2 रिवर है, 3 रिवर है इनफैक्ट. ऑर्लेम से आती है बोईसर. फिर मलाड एक रिवर है जो मलाड सबवे से निकलती है. देन काचपाड़ा से मोई डैम की तरफ से जाती है. ओशिवरा सबको पता है. मोगरा है, वाकोला है, इरला है, गोवंडी और बहुत सारे हैं. ठीक है. So now all this river they come out from a forest. Mostly they come from RA संजय गांधी नेशनल पार्क. ये सबको पता है. So ये मेरे को भी पता नहीं था कि I lived in Borivali. मेरा स्कूलिंग बोरिवली में हुआ है. एंड एवरी टाइम आई लाइक मैंने एक बार तो हम लोग नेशनल पार्क जाते ही थे. लेकिन काफी उम्र गुजरने के बाद भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी. हम लोग जस्ट टूरिस्ट के जैसे ही चीजों को देखते थे नेशनल पार्क. या हम लोग कुछ वास्ता ही नहीं था कुछ चीजों से. पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं था या एनिमल से भी ज्यादा वास्ता नहीं था. सो ये लड़की आई सॉ दिस गर्ल इन नेशनल पार्क एंड दिस वाज अ पिक्चर
was the start of my project called Mumbai River Photo Project. Okay, so this was very deep inside National Park, some 7 kilometer inside, and her name is Aarti, and I talked to her, ki, what you do here, and how you live here, and what do you do? So she said, I'm doing 12th standard, starting in 12th standard, and in what's that girls' college, uh, SNDT college, Aslan, and yeah. So I was very like inside National Park. How she's traveling to college because there was no public transportation inside National Park. So she told me that sometimes she walks and sometimes she goes by cycle. So just after meeting her, I also saw a few students standing outside that pada. Pada is basically is a hamlet or people Adivasi people where they live. So these were all small children, so, senior KG, first standard, also primary school student, and so that is in the center there is a boy called Vishwanath. And he's very I really liked him. He's same age of my son's age, and so I asked him, hello, yeah. I asked him, like I was very surprised. Like all these children now they will walk 7 kilometers to reach school, and again in the evening they will come back 7 kilometer walking, and they will walk 14 kilometers, right? And my son, who is like who school is just 1 kilometer, he goes by a school bus. So this was very like very shocking to me. कि अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? So this is how I started I started thinking about these people, like who are these people, where they live. So I found out they are Wali people and they live near Dahisar River, and that's how I wanted to uh, document about this story because all the life I've lived here, I never saw them. They were invisible to me. So most of the time, what we are do, where we live, the things around us become invisible and we become so machine-like object. So we don't see things, right? So this is how I started my river project. So these children, when they go, they stop in the middle, they see nature. It's a fun actually. Like for us, it looks fun. Aarti, I went inside that pada. That pada name is Chuna Pada. This is the house of Aarti. She lives in this hut. And this is a toilet. This is Aarti's toothbrush. And very simple. I think everybody should live like this. तो अपना carbon footprint भी कम आएगा. And this is the interior of Aarti's house. Her grandfather and grandmother, the cosmetics she used, the bag she has. On Saturday, Sundays, Aarti help her family selling all these fruits. Mostly, if you have visited a national park, so you can see they are allowed to sell biodegradable items, not plastic packaged items. And so I started exploring more Chunapada. So Chunapadas have this. That afternoon only I went inside the Chunapada and I found these children. So what I found is basically the pada was empty in the middle of the daytime, and there were only children. I can see them
that's because the parents, they go to the nearby colonies as housemaid and housekeepers, and only the children were there inside that pada. And this dog was very when I entered this pada, he was very rude to me. He started barking at me and like that. And I saw the elder children, they were looking after the younger children. So this, even the pets, this dog were looking after the children. So this is a very interesting thing one can think of. Ki dogs or elder children. Kripa, this is a very important thing. You also can note it down. Where how these children are they are growing up in the nature's arm. So I found that there is no school inside national park, no public transportation for them, no electricity, and no municipal tap water. So it was shocking to know that state of this place, which is governed by one of the richest municipalities of the world, right? So again, I started visiting Chunapada again and again. And I got this picture where there is a dam in the middle, and that leads to Chunapada. So it is also used as a road to go to Chunapada. And I think 3 months soon, or like just 3-4 years back, I shot this picture. And in monsoon time, only the river flows. So children, even the elder people, they take most of it of the river. They enjoy. They go every day. They go directly into the river and bath. In the basically in summer the river is dry, so they take most of out of it. And you see there is a family on the right side. They also they must be living somewhere in Kandivali, Malad, and they come for doing making a occasion out of it. Yes. So I want to show this is a real picture of Mumbai where we have to make an occasion to come and visit, and these people are, for these children, this is a routine. And likewise, even I have come for many years, and these children were invisible. There is no relation, there is no connect with the children. Even I did not have connection that time with the dam or with the trees or the people who are living that side of the river. And so this is a contrast where we live in Mumbai. Okay, so that's how the journey that's made me think about it. I'll go to, that's why I started this project called Mumbai River Photo Project. Okay, so I'll show you some pictures of the project. So basically, the river stories is not a story of geographical river where we'll talk about technicalities of river, कितना टर्न ले रही है और क्या हो रहा है, सिल्ट कितना है. ये स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ मैं स्टोरी बोल रहा हूँ उन लोगों की जो रिवर के साथ रह रहे हैं, उनके साथ उनकी लाइफ जा रही है. So basically, who are these people? These people are Agri, Warli, and Kohli. Okay, and we are also living, but we are not bothered. हम लोग कचरा फेंकने के लिए रिवर का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं. हमारे लिए वो आई एम कमिंग टू दिस गटर के लिए. सो मैंने एक अच्छा कहीं से देख उठाया ये लाइन. यू कैन रीड दिस. और ये हम लोग ने हकीकत में किया है. वो भी देख सकते हैं. In the beginning, there was a river. The river became a road, and the road branched out to the whole world. And because the road was once a river, it was always hungry. Okay. So ये कोई एक बुक की लाइन है. मैंने वो पढ़ी नहीं है, but मेरे को ये मिला है कहीं से. So I'll show you how this has become reality. I've taken some pictures, so हम लोग आगे बढ़ेंगे. Yeah. So if
you have not visited this place, Rizvi students, you should go to this Kaneri caves, and there are like some 2 3 big water tanks, rain harvesting tank. This was a very hot summer, and some 2000-year-old water tank. And this Warli lady, she was not from Sanjay Gandhi National Park, she was from Palghar. And yeah, so this was a shot. लाइक शॉट लेने के लिए फोटोग्राफी की तमन्ना रहता है ना, फोटोग्राफर अगर एक अच्छा शॉट लो, वो टाइप का शॉट है ये. नॉट मच. दिस इज द ईसर रिवर. Parent has brought his 2 kids to enjoy the clean water. He lives outside national park, and he's from Konkan, he said, and he just wanted to give a feel of Konkan to his children. So there are a lot of students. They come every day in national park, and they have a good time here. This was one of that shot of national park. There is reason behind sharing each picture. So again, a very elderly couple sharing earphone and sitting next to the Isar river. Yeah, very. This is a close-up shot of those children of Sunapada. वही सेम पहले पिक्चर का ही थोड़ा close-up shot है. So this is a flag. I think some religion organization, and it's, if you can't read, I'll read it. Oi me Hindu I. So you can take anything out of it, what you want to. Okay. This is Aarti's sister, small sister. So she is not her mother. The basically जो चोटी बना रही है, but उसकी पड़ोसी है. And एक शॉट है जहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि किस तरह से मेरे ख्याल से डिजाइन है घर की, वो दिखाना था मुझे. Aarti's mother and father bringing. They started celebrating Navratri some 2 3 years back, and Yes. whole family is. This is the Isar River, and they're just crossing the Isar River. They're not using dam; they are just crossing, going through the water. This is one of the shots. कभी कभी like वार्ली किड छोटे छोटे crabs दिखा रहा है. Aarti again, I visited in the evening, and they had puja, Devi ka Navratri puja, and Aarti did the puja and putting up that tilak. This is very. We'll feel sad about this, but that's a routine for them, and the children always help their mother, and they are basically the Adivasis. They collect wood for the fuel. This is one of the shots. Put our close up. So this is very interesting shot where because of I'm a photographer and now I'm concerned. That's why they are visible to me. But there are people who are around, and this may had happened to me some 10 years back. कि मैंने उनको देखा ही नहीं होता. So normally we visit national park and we don't see them. So now I've seen them. I'm showing you. You please see them. Talk to them. Right. There are a lot of vendors, hawkers, like sailors, I would say. They visit Pada to Pada inside national park. This is the Isar River, and he has some ice cream. He's selling ice cream basically. So he visit Nawa Pada, Chuna Pada, Tumni Pada. So Warli art has. There is no Warli art left in these Padas. Only few people who are now doing it. So Aarti's brother has done some Warli dance with the chalk. This is very interesting thing which I got to know. They use chicken waste, chicken intestine to tie on the stake and to catch the crabs. तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखी मुझे. They also now started celebrating Ganpati festival. The photo is not that clear, but वो जो चादर लगाई हुई है, table cloth, that is Warli art cloth, and there is a little
contrast where there is a mainstream religion and there is a Adivasi chadar. So that's why I wanted to show like coexistence or like or overall like people can say like there are like different ways of waving it. Okay. Yeah. They also rear goats. So there's a person called Babu. Babu has some goats, and he whenever I go into national park or he somewhere or other we come across each other. And Babu is a very big, very good shepherd. I will say he gives best of the leaves to his goats. So his Babu is here actually, and there are goats over there, and the goats are waiting for him to throw some leaves. And the moment he throws, all they rush to eat it. So amazing, बहुत मजा आता है वो सब देखने को. And they also celebrate International Adivasi Day. I really like small interesting movements in Adivasi area where there are two chappals और वो स्टेप है, एक बड़ी स्टेप है, एक छोटी सी स्टेप है और बीच में लिखेला I love you, I miss you. वो दिख नहीं रहा है वो आपको. But I really I like this kind of things where we don't see. Then this is a beautiful temple, Devur I will say. They say Devur or Gav Devi Mandir or Jari Mariche Mandir. And see the colors, so beautiful colors. And we see the simplicity, there are no idols. Now just because this temple is inside the forest, it will look like this. The moment it will be populated, this automatically turns into the mainstream mandir where it will be a building and enclosed. उसको गेट लग जाएगा, दरवाजा लग जाएगा, उधर पुजारी आ जाएगा, भजन होने लग जाएंगे उधर रोज. So I feel something where simplicity, we make things complicated. This is more simple. There are very simple temple view. Somehow like we make it complicated and we put a brand on it. So I don't know how people should take it, but this is how it is inside Sanjay Gandhi National Park. So all this Jari Mariche Mandir, Gaudevi Mandir, opposite to Bandra Talao or in Chembur or wherever you see in Kurla. So this were originally Adivasi Dev, and then it became a mainstream, turned into a mainstream temple. So this is again a good architecture for architecture student. They can take a project where they can show the evolution of a temple also, how it starts, how it ends. So this was like 3 years back where the Isa river was flooded and there was a river, there was a housing society from where all these cars were ran into water, and this is old Dhobi Ghat in the Isa river. Now it is walled, so now the Dhobis can't get in. This is again 3 years back. So this is the scene of it, but no more it's available now because the river is walled and nobody can enter in it. And again, I can show you two contrasting where there is a river and inside National Park, and there is a river outside National Park. Right. So here there is a direct access to it because water is clean also, and we can go inside river and have fun. And there we can't enter, and we want to enter, we will not because the water is so polluted, right? So that's Boisar River and this is the Isa River. That's again the Isa River, Dhobi Ghat. Boisar River, and it's not a something great picture, but I just wanted to show how we are treating rivers, how we are encroaching the river. There's a boy standing in the window. There's a school inside river.
St. Xavier's near the Hanukarwadi, Kandivali West. Not St. Xavier's, I think Thakur school. So other view of so as an architecture student, you can see like the pillars of the school are inside a river, so that they get extra space to park their school buses. So yeah, and this is a Poise River when it start. So yeah, we'll talk about this more. This again the Isa River at the end of the close to Khadi, where these children are enjoying the water. If this was clean, they would have got into the river and must have played inside in the water. But this has become a gutter. Again, walled Poise River. This is when Methi River empties into Arabian Sea at Mahim. So this is one of the shot where you can see in 1980s it was a beautiful beach. Now it is gone. This is Khadi where the Isa River meets sea and mangroves where अपना जो भी कचरा हम लोग जो डालते हैं वो ये सब कचरा है हम लोग ने किया हुआ कचरा है जो मैंग्रोव्स में दिख रहा है. So I also did one story with Hemant Vohir. Hemant Vohir is a Kohli, Agri fisherman, and he was showing me all this kachara. I think this is probably the last boat of that Dahisar Gauthan. He's showing me that his boat, and he just kept this boat just to engage himself. He is a Kohli. Otherwise, he just on his holiday he goes in the Hadi and to fish. Otherwise, he has changed his occupation. He is now a rickshaw driver. Again, his friend, he also now, because all their children, they are no more into fishing occupation now. But just to keep their tradition alive, and now all the life they have done this, so they like go and catch some fish for the family, household. I think. So he's Hemant Mohir. He's changed into rickshaw driver. So this is how that their jetty looks like, where it's very difficult to get into the boat also, and crossing all this trash. This is at the Isar Gauthan where the Isar River enters to Khadi. This is Mahim, not Mahim, this is I think Warsaw. This girl is putting up bombills. So this picture shows the contrast where inside National Park there is clean water. And here this is a Methi River where meeting it. This is at Mahim on the left side. The Pardi children, they're playing in this trash. So this is a contrast how outside and inside it looks like. This is Mogra River. ये Lakshmi Industry Estate के सामने से जाती है. You can walk on this river. So even now you can see. Because of monsoon, every time because of monsoon, it is clean actually. This is at Warsaw beach where Afroz has collected all this kachra, and a heap of this kachra is there. But when I visited this place, I found the Kohli people were up against this collection of this kachra because what we do is we city people like to clean. We go on the cleaning drives and all. But we clean. We don't pick this and where to dump it. We don't know it. So because of this, all mountains of garbage, वहाँ पे काफी बीमारियों का प्रॉब्लम हो रहा था कोहलीवाड़े में, और उसका कोई इलाज ही नहीं था. तो जो ट्रक वाला था जो कचरा लेके जाता था, वो बोल रहा था कि हम लोग को यहाँ के लोग मारते हैं पत्थर से. मतलब क्यों मारते हैं? तो उसने वो जवाब ठीक से नहीं दिया. बट व्हेन आई आस्क्ड कोहली पर्सन, ही सेड कि अरे ये कचरा वो लोग लेके ही नहीं जा रहे, हम लोग यहाँ पे इतनी बीमारी हो रही है. तो देयर आर लाइक सो मेनी डायरेक्शन, सो मेनी एंगल टू सी द सेम थिंग, राइट?
So not every time when you see an Instagram post of cleaning drives, वो सही है या नहीं उसका, या दूसरी साइड है, वो भी हमको सोचना है कि क्या है. A story of Portuguese bridge. Isa was waiting for this Portuguese bridge. Daisar River पे एक bridge था. Now Portuguese were like in Bombay, like not in Bombay, before Bombay, like they were already in Vasai and Nalasopara and north of Bombay that area. काफी 15th century में लोगों ने काफी 16th century में काफी churches बनाए, काफी schools बनाए. Even North Mumbai was a part of Vasai only. So Borivali till I think Malad and all that is part of Vasai only. Bombay तो बहुत बाद में बना. तो बोरीवली में माउंट सेंट फ्रांसिस मैरी मैकलेट स्कूल्स है वहाँ पर. तो मिशनरी वाज ऑलरेडी देयर एंड दे फॉर द फैसिलिटी they made a bridge called I don't know what the bridge name was, very different. We now call that bridge as a Portuguese bridge. वो 400 साल पहले बना था. There is a picture which Isa shared with me. Very थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, but there are two you can see arcs and some people standing on the bridge. And this is I think in 18th century का picture है ये. तो मेरे पास और कुछ फोटोज है, मैं दिखाता हूँ. Isa, Yes, yes. you want to talk about this? अच्छा. No, I just wanted to know कि where is this bridge right now? Because there is a bullock cart, there is a slope which is very of different gradient. I can show you if you come to me with me. I can show you where it was exactly and how it was. Like I've seen this bridge when it was there, but मेरे को पता नहीं था कि ये इतना important है या दहीसर रिवर है या वो जोन में ही नहीं था. मैंने देखा था ब्रिज में. I was just thinking कि this bridge might be so important, that's why they might have clicked it. Otherwise, getting a camera here, clicking it, it was like very difficult task for British also. So they might have found something very interesting or something very important. That might be the reason they might have clicked it. So I was just wondering about that. I think ये पिक्चर के पीछे की स्टोरी तो मेरे को पता नहीं, बिकॉज वहाँ पे कुछ ना कुछ होता होगा. Yes. या तो वो उसके बारे में ये एक 1980s का फोटोग्राफ है ये, जहाँ पे ये वाला ब्रिज नहीं है पोर्चुगीज, ये वाला ये नजदीक में जो है ना, ये कहीं से मेरे को मिला है ये फोटो. और ये ऐसा ये दूसरा एंगल है वो ब्रिज का. तो मैंने उसको ये फॉर्म में देखा है समवेयर 2001-2 में मैंने देखा है ब्रिज. और फिर 2005 में so this is basically the Portuguese missionary they made this. और ये 400 साल टिका रहा ये ब्रिज. तो अप्रैल 2006 में उन लोगों ने बोले यार ये सही नहीं है, ये टूटेगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. और लेकिन अगेन वहाँ पे अपना हेरिटेज वाले लोगों ने बोला कि ये तो सेकंड ग्रेड का हेरिटेज है, इसको रखना चाहिए. सो देयर लाइक वहाँ पे उनकी लड़ाई भी हुई, बट अल्टीमेटली तो उन लोगों ने एक ब्रिज बनाया. लोकल कॉर्पोरेटर वगैरह जो होते हैं उनको दे डू दिस बिल्डिंग थिंग्स लाइक टू अर्न मनी. उन लोगों को पैसा कमाने का होता है उन लोग. तो उनको एक लोखंड वाला जो वो ब्रिज उन लोगों को बनाना था, और उन लोगों ने वो बना लिया और इसको तोड़ दिया उन लोगों ने. लेकिन जो ब्रिज उन लोगों ने जो बनाया वो 1 साल में बह गया. वो मतलब नया जो ब्रिज बना था वो जो 2005 कौन सा था, 2005 का ही था ना, या वो बह गया. 2005. तो ये 400 साल से ब्रिज रहा और वो उन लोग ने जो बनाया वो 1 साल में बह गया. मतलब उसके इसके जगह पे उन लोग ने वो ब्रिज बनाया ताकि वो उन लोग ने बोला ये बहुत वीक है ब्रिज, ये हम लोग जो बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह. लेकिन हम लोग से तो इस अगर तुम लोग गूगल सर्च करोगे तो तुमको ये मिलेगा, ये न्यूज शायद इंडियन एक्सप्रेस का है. और उन लोग ने ये बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा अच्छा फ्रंट से है इसका. और काफी देयर वाज अ लेडी, यू कैन कनेक्ट विथ मी इफ यू वांट हर फोन नंबर. तो इंदिरा भेंडे इज एन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट. उनके पास काफी सारे फोटोज है इसके
because she was living there and she wanted to regenerate दहीसर river. So दहीसर river के लिए काफी लड़ाई की उन्होंने, और उन्होंने जो नए पुल बांधे उस ब्रिज रिवर पे, उसके ऊपर भी उसने काफी सारा आर्गुमेंट किया गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, कि वो जो उसके जो पिलर्स है वो रिवर उसके वो काफी चौड़े, जिसकी वजह से नदी का फ्लो रुकता है। काफी सारा उसने डॉक्यूमेंटेशन किया है। शी इज एक्चुअली शोइंग मी हर नोट्स ऑन व्हाट शी डिड इन लास्ट 22 इयर्स। तो काफी सारा कि कौन से अथॉरिटी के पास गई, हेरिटेज वाले के पास गई, म्यूनसिपैलिटी के पास गए, वो सारी चीजें हैं। इफ समबडी वांट्स टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन दिस, कैन डू दिस। तो किसी ने बोला कि ये रिवर ही नहीं है, ये रिवर की डेफिनेशन आते ही नहीं है, दहीसर रिवर रिवर नहीं है, ये नाला है। नाला क्या होता है? वो काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए उस वक्त भी। तो ये एक फोटो है जो इंदिरा भिंडे ने खींचा है फोटो, इनकी मम्मी है ये, और पीछे उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, ये उनका फैमिली डॉग है। और ये रोड है, यहाँ पे रुस्तम जी स्कूल बन गई है, ये बड़ा रोड बन गया है कंक्रीट। और ये आई थिंक ये मेरे ख्याल से 70s का रहेगा फोटो। और पीछे ये है पोर्चुगीज ब्रिज, और उनका ये डॉग है। सो दिस इज वन शॉट, ये उनके फैमिली में से मुझे ये शॉट मिला है। ओके, आई थिंक आई टू हरी अप, मेरे पास बहुत मटेरियल है। ओके, सो दिस अगेन दहीसर रिवर का एक सीन है 70s का, उस टाइम पे का ही है। ये भी एक फोटो है। So she has some pictures. Again, there are some people living, old people living. You can get more pictures of the Dahisa river. Lisa. Okay. So मेरे पास इतना ही कंटेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर किया नहीं, क्योंकि मेरे को इससे ज़्यादा मेरे को आदिवासी और उस पर काम करना था। तो आई फोकस्ड मेनली ऑन, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, तो मैंने शायद उस वजह से उधर ज़्यादा, या मेरा नॉलेज उतना नहीं है वो समझने का, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। एंड आई शिफ्टेड बैक टू द पाड़ा। एक इंटरेस्टिंग चीज मिला, आई डोंट नो इफ यू पीपल कैन रिलेट टू दिस। फॉर मी, आई वाज वेरी नया नया एक्सप्लोरर हूँ, तो मेरे को हर चीज अच्छी लगती है। तो कैन समबडी, मिनाज, और कैन समबडी टॉक अबाउट दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को? कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, sir, it is visible. Yeah. ये मेरे लिए तो बहुत नया था, तुम लोग को पता हो सकता है शायद ये क्या चीज है। So one of our student is telling it can be a pillow lava. पीलो लावा? अच्छा, बाप रे, मेरे को नहीं मालूम पीलो लावा है। अच्छा, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं ईसा? I think so. This is river stone. I think so. They have come up because of the flow of the river. Its gradient or texture came up through the river flow. टेक्सचर किस वजह से आया होगा? काफी सारे चीजें ना, करोजन, इरोजन, उससे हो रहा है या किससे हो रहा है? Might be, I don't know. I'm just guessing it why. Might be a waste which is getting produced or something. Hello. हाँ, Yes, बोल yes. रहा है? Maybe I think, is it a type of a fish? It's a Type of living- fish? Yeah. Yes. A shrimp. Not a नहीं, shrimp. Actually, in मैं, Marathi- हाँ हाँ, Okay, okay. बोलो No, no. नहीं, यू से बोलो। No, if you said it's not a fish, then it's. नहीं, मेरे को ही मालूम पड़े ना, कुछ नया मिलेगा मेरे को। बोलो। So you know the oysters and all. I thought it's that. Of course I know that. Oyster and all. What they do, oyster की वजह से ऐसा नहीं आता है, उसका बहुत रैंडम डिजाइन बनता है। ये पूरा एक लाइन है, एक लाइन में आ रहा है ना। सो नाउ ज्यादा टाइम वेस्ट कर अपने में, और इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, ये इस वजह से हो रहा है कि जैसे जैसे पानी सूखता है, वैसा वो पानी का मार्किंग आ रहा है उसके ऊपर। सॉल्ट है, सॉल्ट। और यहाँ पे लोग कपड़े धोते हैं, तो वो वॉशिंग सोडा जो होता है ना, उसका मार्किंग आ रहा है। मेरे पास इसका वीडियो भी है, जहाँ पे वो आदमी बोल रहा है की जैसे जैसे पाणी आटतं, मराठीत त्यांनी सांगितलंय की जसं पाणी आटत जातं तसं तसे ती लेयर्स बनत जाते तिकडे पाण्याची दगडावर। ये मेरे को बहुत अच्छा, कुछ मेरे को लगा कि मैंने कुछ अच्छा कुछ एक्सप्लोर कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो पानी साबुन का पानी है वो। ओके, बट ध्यान में रखना ये चीज भी। ओके, कमिंग टू ये जो भाई साहब इनका वीडियो है मेरे पास, वो नहीं दिखाऊंगा मैं अब, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे को 12:30 के पहले खत्म करना है। तो एक और स्टोरी पे आते हैं हम लोग। ये इनका नाम है आनंदी भाई। ये अभी जो नए वॉक करने वाले लोग को ये नहीं मिलेगी। ईसा आप मिले थे ना इनसे? Yes, I visited a place also.
ओके सो नाउ शी आनंदी भाई एक वाली औरत है जहाँ वो अकेली रहती है और उसके घर में टर्माइट रेंज है, टर्माइट हिल रेंज है। हमारे घर पे कॉकरोच भी आता है तो हम लोग उसको मारते हैं, बट यहाँ पर हम लोग शी इज लिविंग विद देम, राइट? So for me, it was like beautiful thing where we are coexisting. This is a beautiful example of coexistence. जो हम शहर के लोगों को पता नहीं है वो, बट आदिवासी लोग जी रहे वैसे, राइट? ये उनका घर 3 साल पहले रेनोवेट हो रहा था, तो लकीली आई वाज स्टार्टिंग माय प्रोजेक्ट एंड आई डोंट नो हाउ आई वेंट देयर। तो मुझे घर बनाते वक्त वो फोटो मिला जहाँ पर उन्होंने उसको तोड़ा नहीं नए रेनोवेशन के टाइम पे, और उन्होंने उसको वैसे ही रखा, राइट? तो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल थिंग। तो दैट वाज आनंदी भाई। मैं और एक नई चीज पे आ रहा हूँ। संजय गांधी नेशनल पार्क में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग ये आदिवासी को हम लोग को बहुत दया आती है इनके ऊपर। मुझे तो कभी दिखे नहीं इनको, और जिनको दिखते हैं उनको बहुत दया आती है। तो किसका तो स्पीकर ऑन है ना ये, तो I think the Minaj ma'am. Yeah. तो हम लोग बहुत दयावान हो जाते हैं और हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बहुत बड़े शान से बोलते हैं कि आज हमने बर्थडे आश्रम में सेलिब्रेट किया, और मेरे को बहुत वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम लोग आश्रम में जाके रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते। तो वही एक इंसिडेंट आई विल शेयर विद यू। You can read this. A sedan car honks 3-4 times and stop at the side of the road in the middle of Tumnipada. The children, wherever they are, stop their work and come rushing in the direction of the car. They stand in the disciplined queue behind the car. A gentleman in white comes out of a white car and opens the boot of the car and start distributing Parle G biscuit. और वो बंदा ऐसे ही निकल जाता है जैसे कि पूरी दुनिया उसने चेंज कर दी है। सो ये हमारा एटीट्यूड है उनको देखने का। सो लकीली लाइक आई और व्हाट आई विटनेस दिस थिंग वेयर दैट कार इज स्टॉपिंग एंड द चिल्ड्रन। ये फोटोग्राफ में तुमको दिखता नहीं होगा, बट 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं जो अलग अलग घर में से निकल के दौड़ रहे हैं। किसके लिए? एक 4-5 रुपए के बिस्किट के लिए, राइट? पार्ले जी। And we have made them beggars. मतलब if you want to give somebody, you can go to their home and offer something. You can't make them beggars. तो ये कहानी है। हमको पता ही नहीं कि हमको उनको किस तरह से हेल्प करना है। एक और फोटो है जहाँ पे कोई किसी ने आके उनको बहुत सारे चश्मे देके गए, और चश्मे उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, किसने पूछा है क्या? सो वी नेवर आस्क। हम लोग को जो करना है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं पूछ रहे कि आपको क्या चाहिए, ये सवाल ही नहीं आया। सो दिस इम्पोर्टेंट, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट फोटो है जहाँ पर हम अपने आप को थोप रहे हैं उनके ऊपर। ओके, तो ये कुछ स्टोरीज है मेरे पास, काफी सारे स्टोरीज हैं। अभी याद है हम लोग फ्लड हो गया था 2-3 साल पहले भी, वापस हुआ था फ्लड में क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। या सो दिस इज अंधेरी सबवे। ये अंधेरी सबवे है। ये जो लोग मलार बोरीवली साइड में रहते हैं, ये मलार सबवे है। और ये पोईसर का भी एक सबवे है जो काफी लोग को पता नहीं होगा। सो ये बारिश में भर जाते हैं, राइट? ये बारिश में भरते क्यों है? क्योंकि वहाँ के लाइक अंधेरी सबवे के जो गया होगा अंधेरी सबवे, वहाँ बाजू से ही बहुत बड़ी दीवार है, उसको वजह से दिखता नहीं है। वहाँ पे एक नदी जाती है जिस नदी का नाम है रिवर मोगरा, जो आगे चल के फिर इन्फिनिटी मॉल लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट से जाती है। तो वो बाजू में ही है वो। तो ऑफ कोर्स वो फ्लड होगा तो पानी उधर आएगा। तो हमने ये सारे सबवे जो भरने का रीजन ये है कि वहाँ पर नदी है, और उस नदी का नाम मोगरा इसलिए पड़ा है कि वहाँ पे मोगरा पाड़ा भी है। एक्चुअली ये महाकाली, जोगेश्वरी महाकाली से निकलती है, आती है। तो ये जितने भी काफी सारे जो सबवे है, मलाड सबवे जो है, वहाँ पे रिवर मलाड है। मैंने ही नाम दे दिया रिवर मलाड उसको, क्योंकि मेरे को नदी का नाम किधर दिखता ही नहीं है। तो रिवर मलाड वहां से उसके बगल से ही निकलती है सबवे की बाजू से।
फिर पोईसर सबवे है, वहां पे भी पोईसर नदी निकलती है। तो हम आई डोंट नो व्हाई, अब ये दहिसर रिवर है और ये नेशनल पार्क में हम लोग चले होंगे तो मानसून में उसका ऐसा हाल हो जाता है कि यू कैन सी वेयर इज द रोड एंड वेयर इज द रिवर। तो तो हम लोग यहाँ आके हम लोग घर बना रहे हैं, हम लोग यहाँ आके बिल्डिंग बना रहे हैं, बाद में बाढ़ आती तो अरे म्यूनसिपैलिटी ने काम नहीं किया, गटर साफ नहीं, तो तुमने नदी के अंदर ही बिल्डिंग बना दी, नदी के अंदर ही रोड बना दिया है। तो आई रिमेम्बर दैट, वो एक मैंने कहावत सुनाई ना पहले की, रिवर रिवर बिकम रोड। तो ये हम लोग ने रिवर को रोड बना दिया, राइट। तो ये देर आर लाइक काफी आपके आर्किटेक्चर इसमें पढ़ाया होता होगा कि रिवर में रेड लाइन होती है, ब्लू लाइन होती है, उसके अंदर आपको बिल्डिंग नहीं बांधनी है। ये हम लोग फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये उसका एक डेफिनेशन है रेड लाइन ब्लू लाइन का, 25 साल 100 साल का। और इन 2018 फिर फडनवीस गवर्नमेंट ने वो लॉ भी अमेंड कर दिया और उसमें तुम आप बना सकते हो पब्लिक पर्पस के लिए टॉयलेट रोड, ऐसा उन्होंने कर दिया था। तो फिर बाढ़ आ जाएगी तो कौन जाएगा, फिर परेशानी तो होने वाली है, फिर चिल्लाओ मत, फिर बोलो मत। तो ये कुछ फोटोज हैं फ्लड के। ये एक तुमनीपाड़ा में घर बह गया था, तो उसके वो बच्चे के सारे बुक्स गीले हो गए थे। तो हम लोग ने फेसबुक पे वी हेल्प देम टू बाय न्यू बुक्स। तो ये भी एक फोटो है जहाँ पे दहिसर रिवर है। ये कितना सिंपल फोटो है ना, ये ऐसा होनी चाहिए अपनी लाइफ, बट हम लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ पे नदी है, झाड़ है, घर है, राइट। तो हम लोग वहाँ पे क्या क्या बना देते हैं फिर। ओके, सो या ये उनका घर बह गया था। ये लड़की की ड्राइंग है, वो जो ड्राइंग बुक थी। फिर आते हैं हम लोग वॉल पे, सारे नदियों पे वॉल बन रही है, चालू है। जब से 2005 के फ्लड हो गए तो गाडगिल कमीशन रिपोर्ट ने वॉल बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने सिर्फ एक चीज को पकड़ी, वॉल, और सिर्फ वॉल बना रहे, वॉल बना रहे, ताकि हमको नदी दिखे नहीं, और नदी दिखेगी नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा ये नदी है, और हम लोग तो उसमें कचरा डालेंगे, राइट। तो ये वॉल का काम चल रहा है, अभी भी पूरा हुआ नहीं है। ये मैं जहाँ पे रहता हूँ ठाकुर विलेज, वहाँ की ये पोईसर रिवर है। ये पूरा रोड रिवर थी, उसको बन के इतनी सी रिवर बन गई है, ये छोटी सी। फिर नदी बारिश आ गई तो पूरा रोड पे पानी आ जाएगा, राइट। या और फिर पोईसर में ये रिवर, ये ठाकुर विलेज में रिवर थोड़ी देर के लिए इनविजिबल हो जाती है, अंदर से जाती है। ये है वो पोईसर रिवर, ये भी जो अंदर से किसको पता ही नहीं, अरे कहाँ है नदी। ये ऐसे ही मैंने उस पर वारली आर्ट बना दिया था ताकि वो पता चले कि अरे कुछ तो कनेक्शन है इधर। So here, like, we can't see river, but inside, under this road, this Poisar river is flowing. ये ओबेरॉय टावर है ठाकुर विलेज। सो अगर गूगल मैप करेंगे तो ये रिवर यहाँ से दिखाते, पोइसर रिवर। ये गायब है, ये पूरा यहाँ पे एंटायर रिवर इज गायब। और पोइसर रिवर यहाँ पे से चालू पाता सा पानी करके पाड़ा वहां से शुरू होती है, बट यहाँ पे मैंने लाल जो किया मैंने किया, इतनी स्ट्रेट लाइन हो भी नहीं सकती, वो रिवर थोड़ी ऐसी आएगी, ऐसी जाएगी, बट ये स्ट्रेट हो गई है। तो ये अंडरग्राउंड है, रेड इज अंडरग्राउंड पोईसर रिवर। फिर एक और स्टोरी मिली, हसन, काफी सारे लोग हैं जो रिवर का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करते हैं। हसन बैंड्रा खाड़ी माही एरिया में अगर जाओगे, यू कैन सी डाइवर्स, दे डाइव इनटू दिस मीठी रिवर। हम लोग अपने को जब भगवान अपने को पसंद नहीं होता, हम लोग सारे भगवान को, फ्रेम्स को, कुरान को नदी में फेंकते हैं, और ये सब जाके उसको कलेक्ट करते हैं। तो सारे इस मीठी नदी में उधर माहिम पे जाओगे तो सारे सब तरह के भगवान मिलेंगे उधर गटर में। कुरान के पन्ने मिलेंगे, मूर्ति मिलेगी, हर चीज, साईं बाबा, सब सारे भगवान मिलेंगे उधर गटर में। और ये फिर ये लोग वो फिर कॉइन्स, मूर्ति को दे पिक दोज थिंग्स, और फिर उसको भंगार में बेचते हैं। इसके वीडियोस भी है मेरे पास। तो 400-500 रुपये 2-3 घंटे में कमा लेते हैं। वो उसमें डाइव करते हैं अंदर वो काले पानी में। सो एक स्टोरी, एक और एक स्टोरी है दिनेश की, अपने से आधा घंटा है। और तो दिनेश इज द लास्ट वार्डे आर्टिस्ट ऑफ SNGP। बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो इफ यू कम टू माई वॉक्स आई कैन मिलाऊंगा मैं इससे।
So Dinesh is young, lives in Navapada. वो कहता है कि nobody is interested in वाली आर्ट because कौन खरीदेगा उसको, वो सबको कमाना है, वाली आर्ट करके पेट नहीं भरेगा। उसने अपने दादी से सीखा है। संजय गांधी नेशनल पार्क में रहता है वो, एंड इट वाज लाइक फाउंडेड इन 1950 और 1981 में उसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क पड़ा। कृष्णगिरी उसका नाम था। कृष्णगिरी बिकॉज दैट इज अ माउंटेन, हिल, ब्लैक माउंटेन, जिसपे कानेरी बना हुआ है, कानेरी हिल्स। सो दिनेश मेक्स लिविंग फ्रॉम पेंटिंग। ही यूज ट्रेडिशनल वारली मटेरियल्स एंड कलर्स, और उससे वो साड़ी या कैनवास पे पेंट करता है, वो उसका काम चल जाता है। तो काफी अलग अलग तरह के डिजाइन बनाता है दिनेश। दिनेश के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा है। तो उधर से दिस पॉपी, मैं भूल गया ये फ्लावर का नाम, आई थिंक पॉपी करके नाम है। काफी कांटे वाला फूल होता है जो नदियों में अक्सर आता है ये समर में। तो इससे येलो पेटल से वो कलर बनाता है। काफी ऑर्गेनिक कलर्स भी बनाता है वो। तो हम लोग जब वॉक पे जाते हैं तो वो दिखाता है कि हम लोग मच्छी कैसे पकड़ते हैं, कलर कैसे बनाते हैं। फिर उसका खुद की वाड़ी है। एवरी आदिवासी हाउस होल्ड हैज वन वाड़ी, अ गार्डन वेयर दे ग्रो देयर ओन फूड। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो लोग पहले से ही कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इफ यू वांट टू बाय, यू कैन गो टू आरए और संजय गांधी नेशनल पार्क एंड यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम देम। Okay, so they are living from generation, and national park actually over the period, national park पहले कुछ 80 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर था, 20 किलोमीटर था पहले। फिर नेशनल पार्क बढ़ बढ़ के 100 किलोमीटर हो गया स्क्वायर किलोमीटर। So that means the paras which were not inside national park, they directly came into the forest area, and suddenly what happened? They came under forest law where they can't hunt, they can't farm, and suddenly these people were independent, became dependent, right? Now this, ये लोग हमारे जैसे दुनियाई एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड इन द सेंस ऑफ दैट टाइप वेयर वी, हम लोग को 9 to 5 का जॉब मिलता है, वो टाइप के पढ़े लिखे लोग नहीं है। अपने से ज्यादा होशियार है बट वो नहीं है। तो वो डिपेंडेंट हो गए और उनको अपने अपने दुनिया में दे हैव बिकम वेरी थर्ड क्लास सिटीजन। जो हमारे नौकर हो गए, हमारे बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है सबका। हमने उनको हैंडीकैप कर दिया, राइट? सो दे वर हैप्पी लिविंग इन द फॉरेस्ट, और उनको कोई जरूरत नहीं है। वो लोग ऑर्गेनिक फार्म, उनको बीमारी भी होती नहीं है, अच्छा खाना खाते हैं वो अपने से ज्यादा। अच्छा, उनकी बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अमीर लोग हैं वो। हम लोग ने उनको फॉरेस्ट में लाकर या उनपे बंधन डाल के उनको हमने हैंडीकैप कर दिया, राइट? सो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो एक तरह से, आई डोंट नो, इसको बहुत अलग अलग व्यू है देखने के कि क्या होना चाहिए। So creation of the SNGP has revised the disagreement in the Indian study over the place of the Adivasi. Drawing a boundary to create a protected area inevitably poses the ideological question about the place of the people already resident within that natural environment. Within a few decades, thousands of Adivasi families in India moved from the self-sufficiency to a relative dependence upon the state. Right? See, अंग्रेजों ने भी बहुत किया कि जो टैक्स, see, there is a thing that is, अगर तुम टैक्स पे कर रहे हो ना तो तुम सिटीजन हो। This very something very disaster thing which is हमने ये किया है over the period of the time. So एक दिनेश का एक इंटरव्यू है, I'll just show you that interview, what he's talking about. I hope वो चले। मेरा लैपटॉप स्लो है थोड़ा। I'll play in VLC player, wait, huh?
असलम भाई, हाँ बोलो ना। हेलो। We cannot hear the audio or something. वीडियो दिख रहा है, ऑडियो नहीं दिख रहा है, ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है क्या? एक मिनट में। आपको शायद हेडफोन निकालना पड़ेगा तो वो सुनाई देगा। हाँ क्या? नहीं, मैं बोलता हूँ वो क्या बोल रहा है। बेसिकली ही शोइंग ये जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, और ये सबको आरे में कुछ बनने वाला है, बिल्डिंग है सारे की, वहां पर वो शिफ्ट करने वाले हैं। तो वो पूछ रहा है कि ये अनाज कूटने की ये कैसा लेके जाएंगे, बकरी कैसा लेके जाएंगे, गाय कैसे लेके जाएंगे। ये दो कपल, एक कपल है, वो रो रहे हैं कि मेंटेनेंस कैसा भरेंगे। तो बेसिकली as a like you guys are architecture students, can you design something where you can worship whole पाड़ा in the building? क्या ऐसा हो सकता है क्या? वो ऐसा पूछ रहा है, कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? So this is a building where इधर ऊपर बकरी है, मुर्गी है, तो उसमें सवाल है ये, वो एक सवाल पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या? ये तो दिनेश का सवाल ध्यान में रखना तुम लोग। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी कम टू अनदर पार्ट वेयर एक मिनट इसको Also, Aslam bhai, one more thing. Can you show back the Dinesh का photo in what is having in his hand? वो explain करो ना। वो बहुत interesting चीज है। वो मिस हो गया। वो ये वाला। हाँ, ये वाला करेक्ट। एक हाथ में क्या है? फुल स्क्रीन। अच्छा, इसका मैं एक देयर इज अ वुडी क्लाइंबर, और पूरे जंगल में कम से कम 1 किलोमीटर्स में रन होती है इस, और ये काफी if this climber is there inside Sanjay Gandhi National any forest, that means that forest is healthy, क्योंकि इसको किलोमीटर्स में जाती है। ये क्लाइंबर है, बेल है, बेल। और ये आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ एनी क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करते हैं। ये वुडी है, और कम से कम ये 4 फुट 5 फुट इतनी चौड़ी होती है, लंबी होती है। तो ये दिनेश इसको, आई फॉरगॉट द नेम, उसका इंग्लिश नाम भूल गया मैं, कोई पॉडी है। ये अफ्रीका में भी काफी मिलते हैं ये। उसका लोकल नाम क्या है? लोकल नाम मी विसरलो ते, मी तुम्हाला कळवेन ते परत। यस, ओके। गरवेल करके बेल का नाम जो है गरवेल है। गरवेल, ओके। हाँ, गरवेल। एंड दिस इसका जो ये है, जो स्टेम है, इज वेरी हेल्पफुल फॉर डायबिटीज। बेसिकली कड़वी होती है वो। तो बेल का एक फ्रूट का नाम, मराठी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और इंग्लिश नाम, बट आई जस्ट मेरे को याद दिलाना। मैं मेरा फोन नंबर दूंगा मैं आप लोग को, तो उसमें मेरे को पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ओके। और मैं एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाना भूल गया एक्चुअली, दहिसर रिवर का, पोर्चुगीज रिवर के बात कर रहा था। देयर इज अ मूवी कॉल्ड स्वामी। उसमें शबाना आजमी का बहुत प्यारा सॉन्ग है, जो है मेरे पास वीडियो, लेकिन मेरे को पहले वो आगे का खत्म करता हूँ, अगर टाइम मिला तो दिखाता हूँ। वेयर दिस इज ब्यूटीफुल। मैंने बहुत स्वामी बहुत प्यारी मूवी है, और मुझे वो मूवी देखकर ऐसा लगा कि अरे ये क्या लोकेशन है, केरला का होगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो दहिसर रिवर के बाजू में है, और उसमें पोर्चुगीज ब्रिज दिखता है। सो इफ यू वांट टू सी पोर्चुगीज ब्रिज, तो यू सी दैट, गूगल करो, यूट्यूब करो, स्वामी शबाना आजमी सॉन्ग्स करके, तो यू गेट टू सी दैट पोर्चुगीज ब्रिज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ ईसा, इतना ही बोलने का था मेरे को। और नाव दिस शेंगा म्हणतात त्याला, पण कसले शेंगा आहे ते शेंगाचं नाव आठवत नाही मला, पण यू कैन बाय इट फ्रॉम दिनेश इफ यू वांट टू पेंट ए वार्ली पेंट ऑन दैट। ओके, उसकी भी और भी कुछ स्टोरीज है, लेकिन लेट मी फर्स्ट रन थ्रू द आरए थिंग। तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है। ये अपनी खाड़ी है, वसई खाड़ी, जो हम लोग थाना इधर थाना इस तरफ जाते हैं, और ये कनेक्शन है, यहाँ पे रोड जा रहा है इधर। दिस इज नॉर्थ पार्ट ऑफ द एसएनजीपी नागला पार्ट। ओके, यहाँ पे आ रहे हैं। नाउ देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल कॉल्ड प्रकाश भोईर। प्रकाश भोईर केल्टीपाड़ा में रहता है। उसके घर के सामने से ओशीवरा नदी की ट्रिब्यूटरी जाती है,
Prakash Bhair is very fiery Adivasi activist from हमारे. His consistent initiative help us to shed light on the condition of Adivasi in this forest. तो इसका भी एक इंटरव्यू है, लेकिन अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इनका इंटरव्यू में कैसे दिखाऊं, क्योंकि उसका साउंड आएगा क्या, मेरे को ईयरफोन निकालना पड़ेगा क्या ऐसा? यस, एक बार ट्राई करके देखो ना सर. नहीं सर, एंटायर स्क्रीन शेयर करो तो ऑडियो नहीं आता, अपने को क्रोम टैब से कुछ शेयर करना पड़ता है ऑडियो के लिए. Are you sure? क्योंकि मैंने एक बार ऐसा ट्राई किया. ओके सर हम लोग ने जितने भी थे ना अभी जब तक वीडियोस किए सब क्रोम टैब से ही किए. सो यू कैन मेल मी, तो मैं डायरेक्ट ड्राइव लिंक से प्ले करूंगा इफ यू वांट. मेल यू, और वो मेल बड़ा इंटरव्यू है, एक मिनट देखने दो, वो मेल होने तक तो जमाना हो जाएगा. ओके. तो वो प्यारा इंटरव्यू है उनका एक्चुअली, वो बहुत मजा आएगा वो अगर हम देख पाते तो उसकी शक्ल तो देख ही लो एटलीस्ट. शक्ल दिखा देता हूँ मैं तुमको. रुको, तो वीडियो भी नहीं दिख रहा. No, press no. क्या हुआ? Press no. वो VLC का जो पूछ रहा था ना. नो करना था उधर. ठीक है. We can see him. अच्छा सुनो, ये यू कैन सी हिम ना, तो ठीक है. तुम थोड़ा देख लो, मैं बोलता हूँ अभी. नाउ ही इज टेलिंग कि मरना तो सबको है, मरना भी शान से है. ऐसे मरो कि कुछ वजह होनी चाहिए मरने के लिए. तो आगे बोलता मैं. और so he is basically saying that we should live in the guest. हम लोग को मेहमान के जैसा रहना चाहिए. हम लोग ने ओनरशिप नहीं ली है इधर. हम लोग मेहमान जैसे आए उसको उस तरह से ट्रीट, और हम लोग उस जगह के मालिक नहीं बनना चाहिए. हम लोग मालिक नहीं है. हम लोग थोड़े से फायदे के लिए हम लोग हजारों साल, एक फॉरेस्ट बनने के लिए हजारों साल लग रहे हैं. और हम लोग थोड़ी सी फैसिलिटी के लिए हम लोग का स्पैन कितना है? हमारा स्पैन है 50 साल. Is he there? No sir. So you should like कॉल करके आता. वो लिस्ट में दिख रहा है क्या? So he is there. He dropped out. I think his computer is there. He has dropped out. He will log in again, I'm sure. Or someone call him. Yes. Goli, are you trying to call him? I don't have his contact. I'll ask Sarangi if you want.
Yes, Swarangi, I'm calling call him. him. I'm calling. Yeah, sir. There was some network issue, so we'll be joining again. I think he should stop the video sharing. उसके वजह से it must be taking up more network, more Correct, data. sir. Yes. हेलो, Yes, sir, we can hear you. आवाज आ रही है ना? Yes, yes, we can hear Yeah. you. Can you hear me? Yes, yes. अंदर के ईयरफोन हेडफोन चल नहीं रहा है शायद। या Good. ओके, आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो गया और वीडियो भी नहीं चला। सो लेट मी कंटिन्यू विद दिस। अपने पास थोड़ा और टाइम है। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड, तो आई हैव टू शेयर द स्क्रीन, राइट? है ना? प्रेजेंट नाउ Yes, yes. Yes, sir. एंड या एंड वेट। ओके, सो स्क्रीन दिख रही है अभी? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yeah. Yeah. So we were at Prakash Bhoir. The Prakash Bhoir का actually you should see that what he is talking. मेरे को थोड़ा तुम लोगों आर्किटेक्चर स्टूडेंट लोगों को थोड़ा हिला देने का था, बट तुम लोग हिले नहीं क्योंकि उसकी आवाज सुनाई नहीं दी तुम लोगों को। So he is talking कि we Adivasis we are fighting for our survival, right? और हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये जो पेड़ है या ये जो लेपर्ड है या जो स्पाइडर है या वो बर्ड है, उसके लिए कौन फाइट कर रहा है? उसके लिए कोई भी फाइट नहीं कर रहा है ना। हम लोग को चलो हम लोग जी लेंगे, हम लोग ऐसा बिल्डिंग में रह लेंगे, लेकिन वो लेपर्ड कहाँ रहेगा? उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। उनके उसके लिए कौन फाइट करने वाला है? तो वो उसकी लैंग्वेज में अगर सुनते तो तुम तो बहुत मजा आता, दिल को छूता वो। तो दैट वाज प्रकाश भोईर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है। Aslam, या if possible, now please share this video on some medium, either on your Instagram, IGTV video, या I will कहीं love YouTube to, पे yeah, या I can do that.
या उसका व्हाट्सएपेबल वर्जन अगर बनता है ना तो I'll देन इट share. इज द इजीएस्ट. I'll share. Like I saw some more videos. I can share you. Can like you? What do you want to? You want to put this in like you're recording this thing. You want to put in that? No, but just to circulate to the students. Whatever is the Of course, easiest we medium, can. no? I can do that. Yeah, I can do that. Probably I can also do a talk where I can directly अगर हो सके तो अगर हम लोग इंटरेक्टिव टॉक रखें तो उसमें तो काफी मजा आ जाएगा. We can also talk to them also. ठीक है, तो I can do that. Yeah, coming to there are a lot of stories. मेरे पास बहुत सारे stories हैं. मेरे पास और 2 घंटे भी देंगे तो मेरे पास इतने सारे stories हैं नदी के बारे में. So my perspective was when I was talking to स्वरांगी कि क्या है आपकी टॉपिक, तो टॉपिक हमने थोड़ी सी गलत भी लिख दी है. स्टोरीज ऑफ रिवर. आई डोंट नो, वी शुड हैव ऐसा होना चाहिए था कि स्टोरीज फ्रॉम रिवर, राइट? बिकॉज रिवर एक नदी जो बनती है वो जोग्राफिकली पानी बारिश गिरता है और वो समुद्र में जाती है, ऐसा नहीं है. एक कल्चर जुड़ा है, एक लैंग्वेज जुड़ी है. लैंग्वेज के बारे में हम लोग ने बात नहीं की. वारली लैंग्वेज है. वारली लैंग्वेज मराठी से अलग है. वारली लैंग्वेज में गुजराती भी है. या तो इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, ऐसा भी हो सकता है कि मराठी वारली से निकली हो या गुजराती वारली से निकली हो. हम लोग क्या बोलते हैं कि मराठी का सब डायलेक्ट वारली है, मराठी का सब डायलेक्ट कोंकणी है, बट उसका उल्टा भी हो सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज. इसमें इतने सारी चीजें हैं. नदी, जस्ट नदी के बारे में मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को इतने सारी चीजें मिल रही हैं where every topic can be explored for years, right? तो ये मेरे को बताना था कि ऐसा भी है. तो we come to what I did with the rivers. तो मैंने 2017 में मैंने पहला एग्जीबिशन किया था ऑन द रिवर. और ये मैंने कोई गैलरी में नहीं किया, मैंने रोड पे किया, रास्ते पे किया, स्ट्रीट पे किया, गाँवठान पे किया, क्योंकि मुझे वो लोगों से जुड़ना था. मेरे को मेरे फोटोग्राफर दोस्तों के लिए एग्जीबिशन में करना था. तो आई डिड सब दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन एंड वेयर पाववाला रोज उस नदी को क्रॉस करता है, नाला जिसको हम लोग नाला बोलते हैं. तो ये पाववाला बहुत शॉक में पड़ गया था. उसका उसने मेरे को रिटन, मैंने बुक बनाया था मैं ये लिखने के लिए फीडबैक. उसने लिखा कि मैं लास्ट 8 साल से ये नाले को क्रॉस करता हूँ और मुझे पता नहीं कि 3 किलोमीटर यहाँ से इतनी खूबसूरत है ये नदी. तो दिस हाउ लाइक अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आर्किटेक्चर, मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखता हूँ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के, तो वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे डिस्कशन हम लोग आपस में करते हैं और आपस में ही खुश हो जाते हैं. ये कहीं ना कहीं हमको वो लोगों में लेके जाके उनसे शेयर करके उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो लोग ही शामिल नहीं है उसमें. So somehow there is a disconnect over the like every research talk and everything is happening between us. या तो हम लोग स्टूडेंट है इसलिए टॉक कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है. इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन हम लोग उसको बहुत कम जगह में बात कर रहे हैं. तो इसको हम लोग को पब्लिक करना चाहिए. तो मेरा हमेशा से कोशिश यही रही है कि हम लोग, इसलिए मैंने ये हल्लू हल्लू या जो भी मैंने बनाया ये पब्लिक होना चाहिए, आम होना चाहिए. उसमें हर एक इंसान, क्योंकि हर एक इंसान को समझ में आता है वो. हम लोग बस उनको बोल नहीं रहे. हम लोग बोल रहे कि उनको नहीं समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. तो दिस हाउ आई डिड सम एग्जीबिशन. आई मेड सम 25-26 एग्जीबिशन इन बॉम्बे. ओपन किए थे मैंने ये. तो एक्सेसिबल होने चाहिए. तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सेसिबल होना चाहिए लोगों को. वो ऐप पे नहीं होना चाहिए, वो इंटरनेट पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चॉइस होती है. रोड पे आए तो लोग देखते ही देखते हैं. तो मैं स्कूलों में गया, मैं कॉलेजेस में गया, वहाँ पर मैंने ये एग्जीबिशंस करे. मैंने नदी में भी किए. जब मैं हल्लू वॉक में किया वहाँ पर भी लेके गया मैंने एग्जीबिशन. फिर रहे रचना कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था. वॉल पेंट किए थे हम लोग ने. दिस इज योर वर्ली बैंडा वाली सीलिंग है और ये एक वॉल है, वहाँ पे भी पेंट है. वहाँ पर वॉल पे थोड़ा उन लोगों ने चेंज किया हुआ है. तो ये फिशरमैन जो है यहाँ से, आई विल शो यू, देयर इज अ मिठी रिवर माहिम बे में आ रही है. और ये लोग पे प्लास्टिक से हम लोगों ने ये इनके कपड़े बनाए थे. इफ यू सी दिस वेरी क्लोजली, तो ये गंगाधर सर हैं, उनके स्टूडेंट्स लोग ने मिलके ये पेंटिंग है पहले की वॉल है. गंगा सर है, उनके स्टूडेंट है, मैं हूँ. ये हम लोग का प्रोजेक्ट किए थे हम लोग ने. इसको भी 2-3 साल हो गए. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो इंटरेक्शन
इंटरैक्टिव हो। हमारे किताबों में के प्रोजेक्ट्स कुछ काम के नहीं है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो पहुंच नहीं पा रहा है तो लोगों से। तो आई स्टार्टेड अ कॉन्सेप्ट वेयर आई वांटेड टू मेक पीपल कम विथ मी एंड सी व्हाट आई वांट टू से, व्हाट प्रकाश भोयर वांट टू से, व्हाट दिनेश वांट टू से। तो ये हम लोगों ने मूवमेंट चालू किया कॉल हल्लो हल्लू विद देयर इज अनदर वेरी नॉट अनदर, देयर इज अ वेरी बिग फोटोग्राफर और वेरी गुड somebody who has seen Bombay like anybody. Nobody has seen Bombay like Gopal. तो गोपाल और मैंने मिलके वी स्टार्टेड हल्लो हल्लू एंड हम लोग ने काफी सारे वॉक्स लिए जहाँ की वी वांट टू टेक द बंच ऑफ द पीपल टू एट अ प्लेस एंड लेट यू सी देम, यू स्मेल देम, यू eat with them, you drink with them, do everything with them. This is the concept of Hallo Hallu. So Hallo Hallu brings you an opportunity to discover the city through different ways. We should develop empathy and understanding for the spaces and what we share. Okay, हम लोग के वॉक सिर्फ हेरिटेज वॉक नहीं होने चाहिए। हेरिटेज में एलिट लोग रहे हैं, हम लोग हेरिटेज उसको बोलते हैं जो एलिट है। हर एक पेड़, हर एक चीज हेरिटेज है हमारी, वो हम लोग को दैट एवरीथिंग इज हेरिटेज। तो हमारा हेरिटेज वॉक ये है, मेरा हेरिटेज वॉक दिनेश है। सो या सो दिस वेयर द वॉक्स वी आई एम डूइंग। मैं शायद ईसा भी मिल जाएगा, तुमको दिख जाएगा। दिनेश वर्कशॉप ले रहा है, वी डू वाली आर्ट, वी ईट वाली फूड एंड वी इंटरैक्ट। ये कृपा का बुक लॉन्च किए थे हम लोग ने एक वॉक में। कृपा लीड दिस वॉक कॉल्ड वर्ली से रंग। हम लोग ने पेंट किए वॉक में डिफरेंट, बिकॉज कृपा इज इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट। तो दिस वाज एट दैट फोर्ट, वर्ली फोर्ट पे उन्होंने ये बुक लॉन्च किया है एंड पीछे कितना अच्छा व्यू है। एंड तो कृपा इज वन ऑफ आवर होस्ट फॉर द वॉक। दिस इज गंगाधर सर ने और गोपाल ने मानकूद वॉक किया था, वेयर द हॉरिजॉन्टल स्लम इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल स्लम। तो उसके चैलेंजेस क्या है और क्या हो रहा है, तो वी जस्ट वेंट देयर। फिर आई डिड वन जिंदाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सरोवर जैदी के स्टूडेंट्स आए थे, वो लोग पूरा दिन रुके थे वहाँ पर। एंड फिर सरोवर जैदी का एक डोंगरी वॉक भी हुआ था, बहुत मजा आ गया था। को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन, ज्यू एंड क्रिश्चियनिटी एंड बोरी एंड खोजा एंड सुन्नी एंड शिया, इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन हुआ। हम लोग सारे टेम्पल्स में गए और काफी मजा था। ये वेरी डिफरेंट वॉक। सो या this is it, what I want to do, more of public installation, mapping the padas, and I'm also planning a course on seeing Mumbai, jo maybe I talk to the principal about this course. And yeah, so that's it from me. Thank you so much, sir. It was really great to have you with us today. And सो your रहे थे talk कुछ was लोग, तो सो रहे थे, दिख रहा है मेरे को। कुछ Nice, सो नहीं sir. रहे असलम, Yeah. yes. your मतलब it talk was was so really touching. inspirational. Yes, I agree. And thank you so Aslam, much for stop sharing the screen क्योंकि वो डबल आ रहा है। Sorry? You can stop sharing the screen. Yeah. Okay. Yeah. Yes. कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, बोलना है तो बोलो। Yes, sir. So first of all, thank you so much for educating us about the rivers of Mumbai and sharing so many experiences that you captured through your lens. It was eye-opening. And so there are a series of questions for you, so I'll start reading them out. So Ketaki ma'am says that this topic is very close to me as we have been working on similar issues for a long time. There are so many water channels running through the city. How can we differentiate between the river and drain channels leading to the rivers? Some channels are recognized by nalas by the local coolies who have been navigating through those for decades. Should I answer this? Yes, sir. Okay. So, see, basically, I only understand Nala word itself is a very organic word, right? हम लोग ने उसको गटर भी अलग है। गटर इंग्लिश में होता है कि वो एक छोटी सी पतली जगह जहाँ से कुछ जाता है। गटर मतलब सीवर नहीं है, नाला मतलब भी सीवर नहीं है।
आई एम नॉट जियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट ज्योग्राफी वाला भी बंदा नहीं हूँ मैं, एनवायरनमेंट वाला भी बंदा नहीं हूँ मैं, फोटोग्राफर हूँ मैं, और आर्किटेक्ट भी नहीं हूँ मैं। बट मेरे लिए नाला वो चीज है जो ऑर्गेनिक चीज है, जहाँ एक हाइट से पानी नीचे की तरफ लेके जा रहा है, समंदर में लेके जा रहा है। तो मेरे लिए नाला रिवर है, रिवर नाला एक ही है। तो हम लोग को उसको ऑर्गेनिकली ही रखना चाहिए। तो वेरेवर इवन इन बीएमसी जो नाला को हैंडल कर रही है, वो सीवर डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो रिवर डिपार्टमेंट ही नहीं है अपने इधर। देयर इज नो रिवर डिपार्टमेंट। तो हमारे यहाँ पे रिवर डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो इसको रिवर की तरह से देखे। तो वेरेवर ऑल दी स्ट्रीम्स आर गोइंग, वहां पे आप देखेंगे कि ये नाला है, वो नाला है, एंड दैट्स व्हाई हमारे साइकिक में भी वही आया है कि हम लोग उसी तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरा आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट्री व्हाट आई एम डूइंग, मेरा एक एजेंडा है कि एटलीस्ट वी स्टार्ट कॉलिंग देम रिवर। और वो कैसे होगा कि वेरेवर वी आर क्रॉसिंग द रिवर, वहां पे बोर्ड लगना चाहिए कि आप मोरा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। वी शुड स्टार्ट, एटलीस्ट पहला स्टेप है कि वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम। वो होना चाहिए। आई थिंक मैंने इसका जवाब दिया है शायद, आई डोंट नो। Yes, sir. Thank you, Ketki. Sir, the next question we have is by Dia Joseph. She asks, Sir, is there something behind the name Hallu Hallu? Yeah. तो हम लोग की वेबसाइट है halluhallu.com, you can go there, and Hallu Hallu is ये, can you see my t-shirt? इधर भी Hallu Hallu ही है। Hallu Hallu is basically what गोपाल का भी एक तुम लोगों ने वर्कशॉप रखना चाहिए। So Hallu Hallu means स्लो टू गो, टू स्लो डाउन। मतलब हम लोग कार में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, हम लोग साइकिल पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो सारी चीजें इतनी फास्ट दिखती है हम लोग देख नहीं पाते। हल्लू हल्लू मतलब यू वॉक, व्हेन यू आर वॉकिंग यू गेट टायर्ड एंड यू सिट। जब हम लोग कार में जाते हैं तो हम लोग टायर्ड नहीं होते, और हम लोग बैठ के हम लोग देखते हैं चीजों को। तो हल्लू हल्लू इज बेसिकली टू स्लो डाउन एंड सी द पीपल। हम लोग कुछ करे ही नहीं, हम लोग से कोई बाजू में कोई ग्राउंड है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे को कौन देख रहा है, हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग जाके वहाँ 5 मिनट बिताए, वो कॉन्सेप्ट, दैट इज हल्लू हल्लू। और हल्लू हल्लू इज अगेन व्हाट आई वांट टू से विद हल्लू हल्लू इज a local language. हल्लू हल्लू इज a Marathi word, हल्लू हल्लू इज a Dakkani word. So where I'm talking about, मैं कोई इंग्लिश नाम भी रख सकता था। मेरे को ये बताना है कि हम लोग, हमारी जो लैंग्वेजेस है वो इम्पोर्टेंट है, वारली लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी मैं हिंदी में बहुत ज्यादा बात करता हूँ, या हिंदी, या नॉट हिंदी बोल ही नहीं सकते, आई डोंट नो हिंदी। बेसिकली बॉम्बे की लैंग्वेज में बात करता हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ प्रेजेंटेशन, तुम वहाँ का लोकल को दिखाओ। वी शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम द थिंग्स विच वी आर फ्रॉम। तो मेरे को लगता है हल्लू हल्लू रिप्रेजेंट आवर कल्चर, मी, एंड दैट व्हाट हल्लू इज अबाउट, हल्लू हल्लू, आई थिंक। और सवाल? Thank you, sir. There is a comment by Nasiha Rizvi. She says, our batch had done a documentation of one of the padas, Tumni Pada, I guess, in SGNP in second year for AD. This brings back a lot of memories of the extensive study and discussions that took place in the studio. Thank you, sir, for reminding us of our purpose as citizens of the city to open up our minds beyond the light of urbanization. Brilliant presentation. Thank you. Thank you. Read out all the comments, Sana. Read out all the comments. It's filled with comments. It's I know, right. Just a second. I start with Vrinda ma'am. She says, brilliant session. In the process of urbanization, we have ignored these indigenous settlements, integrating their life with the forest. Thank you so much. Amina Poman says, what lies behind is the phrase I can use for his insights and bringing up for everyone to wait, look around, and analyze the things. Great session, sir. Thank you. Now I would like to invite Ganesh sir and Bharat ma'am to say a few words. Yeah, hello. Am I audible? Yeah, Ganesh sir, boliye. Aslam ji, your talk was too good. I mean, I would say कि it was rapchik to say in that language. Okay, means
you took your time like hallu hallu, and then you gave a one big bolt on our minds to think about what's happening in this world where we are living, and we don't understand what is happening. We are just becoming ignorant, and we are actually, your title of the talk was stories of rivers, but I feel it is rivers of stories, because you had rivers of stories which provoked us to look at things which you would never think of. You touched upon issues like how urbanity, I mean the scope for urbanization, in the scope of urbanization, we have overlooked the disparity which has created because of urbanization. You also mentioned about the rivers, which we are now telling as nalas. It has been marked as nalas in the development plan, so-called development plan. So we are saying that nala. I'm very, I liked your perspective. You say you are not an architect, but I think you, through the camera lens, you have captured architectural perspectives of the people living in those padas, and made us think about it actually. So in all, it was a great lecture. I feel we should get associated with you as a college in your walks and in your studies. And I think we'll come together after the COVID is over, and for the walks, and to do some presentation together with your guidance. Thank you. थैंक यू गणेश सर, आपने बहुत बराबर मेरा छुपा हुआ एजेंडा था कि मेरे को पूरे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को हिलाना था. सो एवरी टाइम गेट अ चांस ना, तो मैं फुल कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अंदर से हिल जाए. तो नहीं बहुत अच्छा लगा, हम लोग हिल गए एक्चुअली. I was feeling sad. मतलब 14 किलोमीटर, मतलब मैंने सीधा गूगल पे जाके देखा यहाँ से कहाँ तक, मतलब ग्रैंड रोड तक कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर. अरे बाप रे, इससे ज्यादा 14 किलोमीटर. Like where are we living? I am so thankful that you are so sensitive. This sensitivity needs to be there in us. Otherwise we can't design. जैसे आपने देखा कि रिवर रोड बन गई है, इन्हें हमको तो पता ही नहीं था कि ये पहले रिवर थी और ये रोड बन गई. जब हम बनाते हैं ना, इवन डेवलपमेंट प्लान को, इंसान जो है वो गायब हो जाता है. इवन व्हेन वी डू आर्किटेक्चरल डिजाइन, बहुत सी बार पूरा डिजाइन बन जाता है पर लोग उसमें से गायब हो जाते हैं. सो यू आर फोकसिंग टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एंड फॉर अस इज दिस सो इम्पोर्टेंट टू हैव देम इंक्लूसिव इन आवर थॉट्स. पहले जैसे आप बोलते, पहले आप देखें, तो पहला तो ये होता है कि सी, feel, observe, and then translate that into an idea. So I am thankful to you, Aslam. You gave your precious time and you had this sort of, जगा दिया जैसे वाला feeling आ गया मुझे. I was stunned, sort of the narrative that you had given. It was a very beautiful way. All the students, 185, like all of them are there, and they are all jage hue hain. Ye sare. So thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you, Aslam bhai. Thank you.